Good evening, everyone. Good evening, Nisha. Hi. Yeah, hello, Dr. Neha. How are you? I'm good. How are you? Thank you. I'm good, thank you. So, friends, we are celebrating Women's Day and we are supporting International Women's Day 2023 theme of Embrace Equity. Equity means giving required or necessary resources to all so that we can get the best from all. So it's not about giving equal resources, rather it's about giving the necessary or required resources or giving the that environment so that all can deliver, their best. So we are supporting this theme and we are running a special series. In this series, we have 3 episodes. We already had our episode 1 where we had discussed in detail about financial freedom. In our episode 1, we discussed about savings, investments, how you can create wealth, how you can do your retirement planning, how you can do your goals planning, what is asset allocation, what is compounding and all. So in case if you have missed our episode 1, you may check out our YouTube channel and you can watch our video. I assure you that it will be very useful to you. And if you like it, you can share it with your colleagues, your family, and your friends. So today you are watching our episode 2 of this series, and the topic of our today's episode is prioritizing fitness. You know, we all know that we women wears many hats of responsibilities. So, but due to lack of time and motivation, it is easy to forget about our own health priorities. Through this episode, we want to remind all women about your health concerns and would like to share how you can take better care of yourselves. Myself, Nisha Agarwal, I'm co-founder TaxPoint Consulting, and I again welcome all of you on behalf of our TaxPoint group. I'm very excited to share that today we have Dr. Neha Kapoor with us. So just to give you a brief intro about Dr. Neha Kapoor, Dr. Neha is MBBS, MD, fellowship in gynecological endoscopy. She has worked with big brands and presently practicing at Kapoor Medical Center, Dilshad Colony, Delhi. She is a member of QI Committee AOGD and executive member EDGF. Dr. Neha, please pardon me if I have, if I am wrong somewhere in No, of these it's statements. absolutely fine. And thank you for the kind introduction. So, Dr. Neha, I thank you from the TaxPoint team and from the all participants side. I appreciate that you took out time for us for sharing your knowledge. So, a big welcome to you on our episode 2 on our platform. Thank you, Nisha. Thank you so much. And I'm really excited to be here. And I would love to, like patients to hum dekhte hi rehte hain. But, sometimes you want to do a work like this where you want to educate people about, where you want to raise awareness. So I'm really excited to be here today. Thank you. Okay, so let's start this episode. Hmm. So, Dr. Neha, as we have kept the topic is prioritizing fitness. So, my first question to you is, what does fitness mean to you? So, Nisha, fitness is a very broad term and it is defined as the quality or state of being fit and healthy. So, you see, it has two parts, being fit and healthy. And it's the ability to perform daily tasks with ease without becoming tired and with extra energy to enjoy leisure time activities such as hobbies and extra daily tasks. जो हम रूटीन में करते हैं वो तो सभी लोग करते हैं, हमारा काम है. बट अगर हम अपने रूटीन के अलावा भी एक्टिविटीज को विथ एनर्जी कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर फिट. एंड हेल्दी means health is a state of complete physical, mental, and social well being,
and not merely the absence of disease or infirmity. तो अगर मैं सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो एक कि हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और फिटनेस मीन्स कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ या स्टैमिना होनी चाहिए कि बीइंग अ फीमेल आई फील कभी हम स्टेशन ट्रेन में जाते हैं या फ्लाइट में जाते हैं तो लड़कियां कॉमनली अपना सामान भी नहीं उठा पाती, दे विल लुक एट द बॉयज टू पिक अप द लगेज। तो आई फील कि सिंपली अंदर इतनी स्टैमिना होनी चाहिए कि आप अपना सामान खुद उठा सको, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। इवन इन ओल्ड एज यू शुड बी एबल टू पिक अप योर ओन लगेज। ये कूलीज वगैरह की फैसिलिटी इंडिया में है, इफ यू गो अब्रॉड तो वहां पे आपको कोई कूली वगैरह नहीं मिलेगा, तो आपको अपना सामान खुद ही उठाना है। तो हेल्दी होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, साथ में स्टैमिना होनी चाहिए अंदर, है ना। उसके लिए हमारे रूटीन में एक्सरसाइज का रोल आता है कि हम कोई एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, जो कि इट शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। Okay, so like at what age we should start exercising? What's your view? So I feel कि अगर बचपन की हम बात करें, है ना, तो स्कूल में, सबके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है, तो टिल स्कूल टाइम सबका एक्सपोजर होता है कि यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इट्स व्हेन यू गो टू कॉलेज और लेटर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो वो वाला पार्ट हमारी बॉडी से धीरे धीरे हमारी रूटीन से जाने लगता है। तो स्कूल में तो लोग करते ही हैं बिकॉज स्कूल में इट इज अ कंपल्शन, एंड जनरली ऑल्सो बचपन में सब एक्टिव होते हैं, खेलते हैं। आजकल थोड़ा सा देयर इज अ चेंज कि लाइक एवरीबडी इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन, तो थोड़ा सा टुवर्ड्स द फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा स्पेंड करने का सबका टाइम कम हो गया है। बट व्हेन यू मूव टू कॉलेज और व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो भी अपनी रूटीन में से आई वुड से मैं पेशेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि एटलीस्ट 20 to 30 minutes a day, if you are exercising 4 to 5 times a week, that's more than enough. Okay, thank you. So next question is Dr. Neha, at what age we should visit a doctor? Like, is it like we should visit you only when we are not feeling well? So I feel that till 10 or 11 a pediatrician is taking care of the women. Matlab till 12 years you generally are going to a pediatrician, and once a female, I'm keeping my discussion to females, restricted to female age group, female gender, okay? So I feel that is okay. So when a female starts menstruating, okay, so I feel that is the time one should visit a gynecologist, and at least yearly everybody should visit. Not that कि when you are feeling unwell या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तभी जाना है, एक रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए भी आपको जाना चाहिए। Okay, so you mean जैसे हमें पीरियड स्टार्ट हो जाती हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट मतलब उस टाइम वो फर्स्ट स्टेप होता है या वो टाइम होता है जब हमें एक बार विजिट करना चाहिए। बिल्कुल। Okay, so do you suggest some basic test as well? Not in every condition, sometimes just a physical examination is fine, and depending on कि अगर हमारे को physical examination में कोई findings मिल रही है, जैसे हम यूजुअली लिप्स का कलर या टंग का कलर देखते हैं, आईज को नीचे करके ऐसे कंजंक्टिवा का कलर देखते हैं, तो ये सब जगह देखते हैं कि खून बॉडी में एडिक्वेट है कि नहीं, हीमोग्लोबिन, है ना। तो अगर हमें कम लगता है तो हम टेस्ट कराते हैं, या कोई अनयूजुअली बहुत मोटा है तो थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं, किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की, है ना, या हमारे क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमको बीपी हाई दिख रहा है तो हम उनको कुछ टेस्ट कराने बोल सकते हैं। तो बेसिकली we decide as per case basis and also depending upon the age of the patient. अगर patient sexually active है तो एक पैप टेस्ट होता है which is a screening test for cervical cancer, तो हम वो भी एडवाइस करते हैं। अगर कोई menstrual irregularities की हिस्ट्री है तो अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस वी डिसाइड कि क्या करना चाहिए, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर and the findings. So Dr. Neha, next question to you is क्या आप कुछ common health conditions बता सकते हैं women में और आपकी क्या एडवाइस है उनपे? तो आई फील कि जो मोस्ट कॉमन हेल्थ कंडीशंस हैं जिससे हमारी ओपीडी में आती हैं गर्ल्स, तो एक है अनीमिया,
विच इज खून की कमी कॉमन शब्दों में, पीसीओडी जिसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, है ना। कॉमनली दो टाइप के पीसीओडी हो सकता है, एक ओबीस पीसीओएस जिसमें पेशेंट का बीएमआई भी ज्यादा होता है, और दूसरा लीन पीसीओएस भी, पतले लोगों को भी पीसीएस हो सकता है। फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी के भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आजकल। ओबेसिटी मीन्स चाइल्डहुड ओबेसिटी, है ना, थोड़ा हमारे कंट्री में आजकल ओबेसिटी बढ़ गया है, तो ओबेसिटी के भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स जिससे पेशेंट्स आते हैं। एंड सेक्सुअली अक्वायर्ड इन्फेक्शंस लाइक वाइट डिस्चार्ज, ये वाली भी बहुत कॉमन पेशेंट्स आते हैं। ओके, तो आप इन पे लाइक ये जो आपने बताया ये कॉमन हेल्थ कंडीशंस हैं, तो आप इस पे क्या एडवाइस करेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो जैसे मतलब हम एक एक करके चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनीमिया। तो अनीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक प्रोग्राम स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है अनीमिया मुक्त भारत, है ना। तो अनीमिया मुक्त भारत पे इतना जोर क्यों देते हैं कि जो खून है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर एक आमतौर पे किसी भी स्त्री का खून हीमोग्लोबिन 12 से अबव होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 12। तो कॉमनली मैं देखती हूँ 50 to 60% of the females who are coming to our OPD, they have hemoglobin around 9, 10, even less than 9. So it affects the hemoglobin is basically the oxygen carrying capacity of the blood. तो हमारी बॉडी में हर ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों से अंदर लेते हैं, बट खून उसे लेकर जाता है हर बॉडी के पार्ट तक, एक एवरी सेल तक। तो अगर जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, तो इसका मतलब सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा। तो जब नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन तो हमारे अंदर जो भी वो ऑर्गन काम कर रहा है वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं खून की कमी के? तो कॉमनली कुछ लोगों को पीरियड बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसमें क्लॉट्स आ सकते हैं, या फिर मोर देन 7 days के लिए ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर फ्रीक्वेंटली पैड चेंज करना पड़ रहा है, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कि जल्दी थक जाते हैं, कोई सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लगती है, या फिर कुछ भी आप कोई हैवी काम करो जैसे कपड़े धोना या कोई बाल्टी उठाना, तो वो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो या फिर स्वेलिंग है फेस पे, पैरों में, है ना, या फिर कॉमनली कोई आपको देख के कभी कह दे कि तुम बहुत पीली लग रही हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका खून कम है। तो इन सब कंडीशंस में अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब दूसरी चीज पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो जिससे कि आपका खून इनफ रहे, हीमोग्लोबिन इज ऑप्टिमम। तो यूजुअली वी हैव सीन कि वेजिटेरियन डाइट में ही लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है, क्योंकि आयरन एक तत्व है जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए। तो वी शुड हैव आयरन रिच डाइट। तो व्हाट आर द फूड आइटम्स व्हिच कंटेन आयरन? तो जैगरी होता है ना, पनीर, स्पिनच, बीटरूट, लेग्यूम्स, स्प्राउट्स, डेट्स, these are very rich sources of iron. नॉन वेजिटेरियन डाइट में मीट इज अ वेरी गुड सोर्स, एग व्हाइट इज अ वेरी गुड सोर्स। तो यूजुअली हीमोग्लोबिन कम वेजिटेरियंस में ही ज्यादा पाया जाता है। दूसरा एक कंडीशन होता है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक कंडीशन जिसमें ऑटोमेटिकली ही बॉडी में खून कम बनता है, उसमें हम आयरन सप्लीमेंटेशन से भी खून बढ़ा नहीं सकते हैं। तो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग प्रेगनेंसी में तो इट इज अ मस्ट, बिकॉज इट इज अ हेरिडिटरी कंडीशन। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया है तो बच्चे के अंदर थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, विच इज अ वेरी सीरियस कंडीशन इन विच द बेबी इज डिपेंडेंट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इट इज अ टोटली प्रिवेंटेबल थिंग, बिकॉज अगर हमें टाइम से पहला पता चल जाए कि दोनों हस्बैंड वाइफ को थैलेसीमिया, हम बच्चे की भी स्क्रीनिंग करें, तो वो ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं होगा, है ना। तो थैलेसीमिया की जांच प्रेगनेंसी में जरूर करानी चाहिए। अब दूसरे हमारा प्रॉब्लम था पीसीओडी, राइट। तो पीसीओडी की बात करें तो पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में मोस्टली इरेगुलर पीरियड्स इज द चीफ कंप्लेंट, है ना। इरेगुलर पीरियड मतलब अगर हम नॉर्मल पीरियड की बात करें तो 21 से 35 डेज के इंटरवल पे अगर कोई भी पीरियड आ रहा है तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। 21 डेज से कम में नहीं आना चाहिए पीरियड, और 35 डेज से ऊपर भी नहीं आना चाहिए। बट इसमें एक कैच है कि जैसे पीरियड हम जब आने शुरू होते हैं, जिसको हम मिनाके बोलते हैं,
तो जब पीरियड आना शुरू होता है तो उस टाइम ब्रेन सेट नहीं होता है ना, कई बार उस टाइम पे 2-2 3-3 महीने में भी पीरियड आते हैं, तो हम फर्स्ट 2 इयर्स कुछ ट्रीटमेंट नहीं देते है ना, Okay. 2 इयर्स हम टाइम देते हैं ब्रेन को सेट होने का। तो 2 इयर्स के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है देन इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो Okay. 35 डेज से अगर ज्यादा के इंटरवल पे पीरियड आ रहा है आपको तो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। पीसीओडी सिर्फ इरेगुलर पीरियड से ही नहीं होता है, इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ अगर अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग होती है टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, अगर वो भी है साथ में, या फिर बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं उसमें हार्मोन लेवल्स अगर पीसीओडी वाले हैं देन वी लेबल इट एज पीसीओडी। ओके, तो कॉमनली बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, बचपन से ही आ रहे होते हैं पर कभी ध्यान नहीं करते, ये सोच के कि ठीक है कोई बात नहीं 2-3 महीने में आ रहे हैं, आ तो रहे ही हैं, बट फिर जब शादी होती है कंसीव करने में ऐसे वाले पेशेंट्स को यूजुअली प्रॉब्लम आती है एंड देन दे कम टू द डॉक्टर। तो दैट टाइम इट इज लिटिल बिट लेट, है ना, अगर आप शुरू से ही ट्रीटमेंट लो तो फिर थोड़ा कंसीव वगैरह करने में मुश्किल नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइक नेक्स्ट ऑन लिस्ट वाज ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के लिए आई वांट टू गिव द मैसेज टू ऑल मदर्स स्पेशली, है ना, कि नंबर 1, ब्रेस्ट फेड बेबीज में ओबेसिटी का इंसिडेंस इज मच लेसर देन द फॉर्मूला फेड बेबीज। तो all the women must try to breastfeed their babies for at least 6 months. ओके, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि 6 महीने तक आपको अपने फीड के अलावा बच्चे को पानी भी देने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर 6 months यू स्टार्ट वीनिंग, तो देन वीनिंग के टाइम पे आप यू कैन स्टार्ट सप्लीमेंट्री फूड एंड ग्रेजुअली यू कैन वीन ऑफ द बेबी विथ योर ब्रेस्ट मिल्क। ओके, एंड द अदर थिंग इज कि यूजुअली बच्चे गोलू मोलू होते हैं तो सारी माओ को बहुत क्यूट लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा क्यूट लग रहा है, मोटू है, गोलू है, चबी है। बट यू नो दिस इज द पॉइंट, यहीं से बच्चे के अंदर ओबेसिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो मदर्स को शुरुआत से ही शुगर इनटेक पे बच्चों के कंट्रोल करना चाहिए। आजकल हम बहुत देखते हैं ना कि बच्चा रो रहा है, इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो आई हैव टू गर्ल्स एंड व्हेन दे आर क्राइंग तो समटाइम्स उनको चुप कराने के लिए मैं भी कभी कभी दे देती हूँ कैंडीज, बट इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। वी शुडंट ओवरलोड आवर किड्स विद शुगर एंड वी मस्ट मेक देम एक्सरसाइज। अगर हम बच्चा मोटा है तो आप उससे भगाओ, घी से चुपड़े हुए पराठे मत खिलाओ, मीठा मत खिलाओ, जंक मत खिलाओ। मेक इट अ रूल, आई हैव मेड इट अ रूल इन माय फैमिली दैट ओनली सैटरडे दे विल गेट जंक, रेस्ट ऑफ द डेज नो जंक। तो कहीं ना कहीं इन वाली हैबिट्स की शुरुआत शुरू से ही होती है। शुरू से ही आप रोज उनको खाना नहीं खा रहे हैं तो चलो जोमेटो और स्विगी के आने से बहुत एक्सेसिबल हो गया है जंक फूड, है ना, तो हम खुद भी वही खाते हैं और फिर बच्चों को भी वही खिलाते हैं। तो इसलिए ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट फ्रॉम द बिगिनिंग। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट का सडनली एक दिन उठा और पेशेंट का वेट 100 किलो हो गया, है ना, ये धीरे धीरे होता है। पहले आप 60 से 62 होते हो, फिर 65 होते हो और फिर जाके आप 100 होते हो। तो जब एक बार आप वो लिमिट क्रॉस कर जाते हो ना फिर वेट लूज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई माई सेल्फ प्रैक्टिस, आई कीप अ वेइंग मशीन इन माई रूम, आई वे माई सेल्फ डेली, है ना, आपको डेली अपना वेट पता होना चाहिए कि क्या मेरा वेट चल रहा है, सो दैट यू आर सेंसिटिव टू योर वेट गेन एंड देन यू एक्ट इन टाइम, नॉट व्हेन इट्स टू लेट। तो Okay. कभी ऐसा लगे कि आपने बहुत जंक खाया है तो अगले दिन ज्यादा 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ो उस जंक को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, सो डॉक्टर निया, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जनरली अभी आपने बोला ना कि गोलू मोलू बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, तो जनरली जैसे क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, या ऐसा अक्सर सुना भी है कि बचपन में तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बाद में धीरे धीरे चेंज होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे जैसे हम अगर ये माने कि बचपन में तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल वेट होता है, तो जैसे किस एज पे फिर हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं, अगर इस एज में भी बच्चा अगर हमें ओबीस लग रहा है तो अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या मतलब कोई कुछ ऐसा है क्या? तो देखो क्योंकि जनरली क्या निशा, होता है कि जैसे कोई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सॉरी हाँ सॉरी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बीएमआई। उसमें हम क्या या करते हैं, बीएमआई इज वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, है ना, तो आइडियली इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 18 to 23। ठीक है, तो सिंपल बीएमआई कैलकुलेटर्स नेट पे भी मिल जाता है, तो यू कैन जस्ट पुट द वेट एंड द हाइट एंड इट विल गिव यू अ बीएमआई।
तो जो आइडियल बीएमआई है वो 18 से 23 की रेंज में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप पीडियाट्रिशियन के पास तो 12 साल तक वैक्सीनेशन के लिए जाना ही होता है, तो दे मेक समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ चार्ट, है ना। उसमें वो बच्चे का बर्थ वेट नोटेड होता है, एंड फिर एवरी ईयर दे मेजर द हाइट ऑफ द बच्चा एंड द वेट या ऑफ द बेबी। तो इट हेल्प्स, तो पीडियाट्रिशियन ही बता देगा कि बच्चा ओवर वेट है या नहीं। हम्म एंड आजकल तो स्कूल में भी काफी स्कूल हेल्थ अवेयरनेस हो गया, तो इवन इन स्कूल दे मेक यू मेजर द हाइट एंड वेट, है ना। तो वहां ओके से कॉन्स्टेंटली आपको पता चलता रहेगा कि बच्चे का वेट ज्यादा पुट ऑन तो नहीं हुआ। और वैसे एक बहुत क्रूड तरीका है कि एक धागा ले लो, ठीक है, तो अपनी हाइट को नापो, है ना, अपने सिर से लेकर टो तक, और उस धागे को आप अपने वेस्ट के अराउंड करो, है ना, तो पूरा वेस्ट कवर हो जाना चाहिए, समझ गए। अच्छा, तो मतलब ये, ऐसे तो वो बहुत एक्सेस, मतलब लाइक लेंथ में तो बहुत ज्यादा होगा ना। हाँ, पर वेस्ट का सर्कमफ्रेंस जो होता है ना, या तो वो उसको कवर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहे उससे। अच्छा, ओके। सो अगर वो पूरा उतना है कर रहा है या तो एक्स्ट्रा है तो ठीक इट्स है, फाइन। हाँ, अगर एक्स्ट्रा नहीं नहीं कर होना पा चाहिए, रहा, नहीं कर पा रहे इसका मतलब आप डेफिनेटली हाँ मोटे हो। हाँ, या ओके, ठीक है, थैंक यू। सो अब हम ये आपने बताया जो जनरल हेल्थ कंसर्न्स जो है, मोस्ट कॉमन हेल्थ कंसर्न्स। अब मैं थोड़ा सा आपसे पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल। ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है ज्यादातर पीरियड, कंसीवमेंट, ये सब क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं। हम्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखा था वो इरेगुलर पीरियड्स का है, बट वो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया हम्म। कि इरेगुलर पीरियड्स जो हैं, आपने बोला स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक इट्स फाइन, हम्म। अदरवाइज अगर 2 महीने से ज्यादा है आपने बोला ना, तो वी शुड 35 विजिट। डेज से, 35 डेज से 35 डेज ज्यादा। से अगर ज्यादा है, कई बार होता है जैसे लाइक एवरी, मतलब जनरल होता है कि एवरी ऑल्टरनेट मंथ में थोड़ा 5 दिन और डिले हो गया, 40 डेज बाद आया, 45 डेज बाद आया, तो वो भी इज इट अलार्मिंग एज वेल? Yes, it should not, it should, you should be getting your periods within 35 days. So if you are not getting, so you must do, you must visit a gynecologist. ओके, सो डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फ्लो के रिगार्डिंग है कि जनरली, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल जैसे हम फ्रेंड्स फैमिली में डिस्कस करते हैं, सो जनरली जो फ्लो है पीरियड्स में वो 4 से 6 दिन तक रहता है। हम्म। बट कई जनों में, जैसे आई ऑल्सो हैव अ गर्ल इन माई फैमिली, जो जब मैं डिस्कस करी थी मुझे पता चला कि उसका फ्लो जो है वो सिर्फ 2 या 3 दिन आता है। सो क्या ये जो मतलब ये फ्लो में भी कुछ कंसर्न होता है क्या, कि अगर फ्लो सिर्फ 2 से 3 दिन आ रहा है तो इज इट समथिंग अलार्मिंग या इट्स Actually, नॉर्मल? अगर less than 2 days है तो it is alarming. 2 to 3 ओके, days is fine. So we say कि 2 to 7 days is fine for the flow. It should not be more than 7 days. It should not be less than 2 days. So like I say कि every body is different, है ना, every patient is different. Some people get exactly like कहते हैं बहुत सारे patient ना कि मुझे तो 1 को ही आता है period, मेरा इतना fixed है. या Some people get their periods in 26 days, some people get in 32 days. So that, like, the length of the cycle is also, it also differs for different people, and flow, duration of flow also differs. तो इफ लेस देन 2 है तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। उसमें कॉमनली क्या हम डाउट करते हैं कि कोई सिस्ट तो नहीं है, कई बार ट्यूबरक्लोसिस, मतलब यूट्रस की टीबी भी हो सकती है, तो एक वो कंसर्न होता है। कॉमनली मैंने देखा है कि ओबीज लोगों में भी पीरियड कम आता है, फ्लो कम होता है, तो वो एक इशू हो सकता है। तो इसलिए अगर कम आ रहा है बहुत फ्लो, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, 2 डेज से कम है तो। अच्छा, या कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा तो एक ही पैड से पूरा काम चल जाता है, लाइक डोंट नीड टू चेंज, तो दैट इज ऑल्सो अलार्मिंग। ओके। सो डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कई बार लाइक जैसे मेरा अपना ही केस है कि जो स्टार्टिंग में जब पीरियड्स आने स्टार्ट हुए थे, सो मीन्स अर्ली 20s में, लाइक डे 1 पे बहुत पेनफुल होता था, मतलब सिवियर पेन होता था, इतना पेन कि मतलब अगर हम ऑफिस में हैं, क्लाइंट साइड कहीं पे भी हैं, तो पेंट हो जाती थी मैं, मतलब बस उस टाइम कुछ कर ही नहीं पाती, मतलब मैं इतना इवन अपने मैनेजर तक को इन्फॉर्म नहीं कर पाती थी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, एकदम से मतलब फेंट हो गई। तो वो सिचुएशन में बस ये होता था कि कैब, मतलब नीचे ड्राइवर जो है मैं घर छोड़ दे। तो वो चीज जो है, जो ये कई जनों को बहुत पेन होता है, जैसे घर में मदर को पता था, बट शी वाज लाइक कि इट्स नॉर्मल, मतलब होता है कई कई जनों को नॉर्मली ये रिप्लाई मिलता था या उनका ऐसा रिस्पॉन्स होता था कि इट्स वेरी नॉर्मल, कुछ जनों को बहुत होता है, कुछ को नहीं होता, तो इसमें ऐसा कुछ कंसर्न वाली बात नहीं है।
और कई जने ऐसा भी कहते थे कि जब बहुत ज्यादा होता था, दिखता था अच्छा आज मैं घर आ गई वापस, आज मेरा डे 1 है, तो रिलेटिव्स वगैरह कहते थे कि ये सब चीजें ना शादी के बाद लाइक कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सो बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया कि डे 1 बहुत ज्यादा पेनफुल है, और एक्चुअली में ये चीज अब कम भी हो गई है। व्हेन आई एम इन माय लेट 30s, अब जो है डे 1 नॉर्मल डे है, लाइक टुडे इज आल्सो माय डे 1, बट आई एम टेकिंग अ लाइक होस्टिंग अ सेशन। सो अब नॉर्मल है, तो क्या ये चीजें मतलब नॉर्मल है, या आपका क्या व्यू है इस पे? So, see, any amount of pain which is forbidding you from carrying out your day-to-day activities, है ना, like जैसे आपने बोला कि मुझे काम छोड़ के घर आना पड़ता है, that is not normal, है ना। पेन होता है पीरियड के फर्स्ट सेकेंड डे पे, कई बार बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें पेन किलर ले लो। अगर पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है तो इट इज एबनॉर्मल। ओके, कॉमनली बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा बताते हैं कि हमने सुना है कि नहीं, दवाइयां ज्यादा खाने से आगे प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा, ये दिस इज अ मिथ, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेन किलर आप महीने में कितनी बार खा लोगे, 2 या 3 बार, क्योंकि पीरियड तो एक ही बार आएगा महीने में, तो ज्यादा से ज्यादा पहले दिन पे ही जरूरत पड़ती है, तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। लेकिन अगर पेन किलर खाने से भी आपका पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमें तो इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है, टैबलेट से नहीं कुछ होता है, तो दैट कंडीशन वारंट्स अ चेकअप। तो कॉमनली क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दो प्रॉब्लम्स जो हमने कॉमनली देखते हैं कि एक फाइब्रॉइड, मतलब यूट्रस में गांठ होती है, तो उसमें भी पेन बहुत ज्यादा हो सकता है। एंड दूसरा कंडीशन एक एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि पीरियड का ब्लड बाहर आने के साथ साथ थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाता है, मतलब यूट्रस के अंदर ट्यूब्स की ओपनिंग होती है, तो उसके थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू वो पेट पे चला जाता है, तो कई बार ब्लड की गांठें बन जाती है ना, ओवरीज के आसपास। तो वो कंडीशन बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल होती है, आगे जाके उन लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज भी आते हैं, कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। ऐसे पेशेंट्स को कई बार पॉटी वगैरह करने में भी बहुत सिवियर पेन होता है, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे भी पेन हो सकता है। तो अगर इतना सिवियर पेन है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। एंड मोस्टली पेन किलर से अगर काम नहीं चलता है तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, जिसको हम गर्भ निरोधक गोली भी कहते हैं, दे आर हार्मोनल पिल्स, तो दे आर द सेकेंड स्टेप। तो यूजुअली उसको लेने से पेशेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड इट प्रिवेंट्स द सिवेरिटी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस आल्सो। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मूड स्विंग्स एंड जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं। तो लाइक पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड टू टेक दैट पिल्स। और क्या हमें पीरियड्स में योगा एक्सरसाइजेस ये सब अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, उसी तरह एक्सरसाइज भी, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो नथिंग शुड प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग इट, यू कैन टोटली डू। समटाइम्स जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों में बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तो वो लोग कम कर सकते हैं, बट हम आजकल रिसेंट स्टडीज से शो कि योगा करने से एंडोमेट्रियोसिस में भी रिलीफ मिलता है। तो अगर आप पर्टिकुलरली एक दिन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट आप रूटीन में उसको करते रहो। डॉक्टर नेहा, अब मैं आपसे थोड़ा सा कंसीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। तो बिल्कुल। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर लोग दे आर ट्राइंग टू कंसीव बट समहाउ नॉट गेटिंग सक्सेस। सो ऐसे सिनेरियो में उनको गायने को कब विजिट करना चाहिए? जब वो अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि मुझे कंसीव करना है उसी टाइम, या फिर जब वो ट्राई कर रहे हैं और कुछ टाइम तक उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है तब हमें विजिट करना चाहिए गायने को? सो देखो, आइडियल कंडीशन में तो जब आप प्लान कर रहे हो कि नाउ यू वांट टू बिकम पेरेंट्स, तो आइडियली तो दैट इज द राइट टाइम टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट वंस, टू जस्ट चेक कि वेदर यू आर इन योर ऑप्टिमम हेल्थ कंडीशन और नॉट, कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपकी शुगर्स ठीक है, थायराइड ठीक है, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम है तो इवन आप बिफोर कंसीविंग उसको ठीक कर पाओ, है ना। दैट इज द आइडियल केस सिनेरियो। एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन होती हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन होती हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं लगती हैं, तो इट इज बेटर दैट आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही वो वैक्सीनेशन ले लो, जिसमें कॉमनली एक HPV वैक्सीन होती है जो कि प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर के लिए, एंड दूसरी वैक्सीन होती है रूबेला, जिनको बचपन में अगर वो बीमारी नहीं हुई हो तो हम प्री प्रेगनेंसी एक बार चेक करते हैं कि आपके अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं। अगर एंटीबॉडीज नहीं है तो वी गिव द वैक्सीन ऑफ रूबेला एंड वी एडवाइज कि नॉट टू कंसीव फॉर अनदर 1 month, एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो। तो दैट इज द आइडियल केस कि यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर बिफोर
even before you just start planning for pregnancy, ठीक है? And the other condition is कि you are not able to conceive even in spite of trying. So then when should you visit the doctor? So then we say कि 80% of the couples conceive within 1 year of regular sexual intercourse, है ना? तो अब इसमें कई बार ये भी आता है कि पेशेंट 1 ही महीने हुए शादी को और आ जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, है ना? अभी तक हम प्रेग्नेंट नहीं हुए। तो ऐसे कि 1 साल एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई, एंड 1 ईयर का मतलब है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो इवन आफ्टर 1 ईयर इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर। या फिर आपको पहले से कोई हेल्थ कंडीशंस है, लाइक योर एज इज मोर देन 35, या फिर आपकी हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर पीरियड्स या पीसीओडी है, या फिर अभी कोई कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चला हो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी का, बिकॉज दोज ड्रग्स आर टॉक्सिक टू द गैमीट्स लाइक ओवरी एंड टेस्टिस। तो इन सब कंडीशंस में आपको पहले विजिट करना चाहिए डॉक्टर को, अदरवाइज एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर। ओके, सो आप सजेस्ट करते हैं मतलब आफ्टर 1 ईयर। ओके, सो और जो एज फैक्टर हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं वो आप कहते हैं 35, लाइक इफ सपोज वी आर 30, बिकॉज जनरली मैंने ये भी ऐसा सुना है कि लाइक लोग कहते हैं कि आई एम 30 और शादी को 2 साल हो गए, हुआ नहीं, तो एज निकले जा रही है। तो जस्ट आस्किंग यू कि अगर एज 30 है, इज इट ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब लाइक इज इट टू लेट? नहीं, 30 इज द न्यू 25 यू कैन से, है ना? Okay. आजकल थोड़ी शादियां डिले ही होने लगी हैं। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास हमारी मम्मीज वगैरह की सबकी शादी 20s में हो गई थी, है ना? बट आजकल बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग, मोस्ट ऑफ द वुमेन आई नो दे आर वर्किंग, तो इन बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस थोड़ा आजकल मैरिजेस डिलेड हो गई हैं। तो 30 इज नॉट अ कंसर्न वाला इशू नहीं है, बट 35 से अबव फर्टिलिटी डिक्लाइंस इन फीमेल्स फास्टर देन इन मेल्स। तो 35 के बाद ग्रेजुअली फर्टिलिटी डिक्लाइंस, है ना? और वैसे एवरी फीमेल इज बोर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स, है ना? एंड इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वी लूज एग्स, है ना? तो धीरे धीरे वो कम ही होता जा रहा है। तो 35 के बाद बहुत जल्दी रैपिड डिक्लाइन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइडियली प्रेगनेंसी 35 से पहले हो जानी चाहिए। ओके, सो डॉक्टर जैसे अभी आपने हेल्थ कंडीशन बताई थी, तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक क्या हमारी हेल्थ कंडीशन जो है वो भी हमारी फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं? जैसे पीसीओएस होता है, थायराइड डिसऑर्डर्स, मेन में स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी, ये सब क्या, ये सब चीजें मतलब मेडिकेशन जो हमारी चल रही होती है ये फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है? तो थायराइड की मतलब अगर हम इसमें 2 पार्ट्स आ गए आपके क्वेश्चन में कि अगर आपको ये सब हेल्थ कंसर्न्स हैं तो क्या ये फर्टिलिटी को इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली करता है ना? पीसीओडी वाले पेशेंट्स को कंसीव करने में दिक्कत आती है क्योंकि एग्स बहुत अच्छा नहीं बनता। थायराइड वाले पेशेंट्स को भी आ सकती है इफ योर थायराइड इज नॉट अंडर कंट्रोल। अगर अंडर कंट्रोल है तो प्रॉब्लम्स नहीं आती है यूजुअली, अगर कंट्रोल में नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार थायराइड वाले पेशेंट्स में रिकरेंट मिसकैरेजेस भी हमने देखे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है बट देन दे अबॉर्ट। एंड सेम वे इन पुअर स्पर्म काउंट्स भी they can face infertility or they can face early fetal demise या recurrent abortions. बट उनकी जो मेडिसिन है वो नहीं इफेक्ट करती है। मेडिसिन आर गोइंग टू हेल्प यू ओनली, है ना? थायराइड मेडिकेशन इज एब्सोल्युटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयर आर सर्टेन मेडिकेशन व्हिच आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, तो वो डॉक्टर्स यूजुअली बता देते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं जो कॉमनली लोग खाते हैं, वो सेफ नहीं होती है प्रेगनेंसी में। इवन शुगर की मेडिसिन सेफ नहीं होती है प्रेगनेंसी में, तो इन प्रेगनेंसी वी स्विच टू इंसुलिन। सेम वे इन ब्लड, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में वी स्विच टू सेफर एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो जनरली अगर आप डॉक्टर के टच में रहोगे तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, डॉक्टर ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि आजकल जो है हार्डली हम नॉर्मल डिलीवरी के केसेस देखते हैं, प्लीज डोंट माइंड, हाँ, बट जनरली जो डिस्कशन में आता है वो यही होता है कि सी एवरीबडी ट्राई टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, राइट? सब चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, वो कहते हैं कि यस, मतलब हम उस, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी सभी चाहते हैं तो हमें क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए? प्लस जैसे अक्सर सुना गया है, देखा गया है कि हम चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी बट सब बोलते हैं डॉक्टर ना एंड में कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ रीजन देके सिजेरियन कर देते हैं। तो ये जो चीज है ये मतलब कितनी सही है कि मतलब थोड़ा सा प्लीज डोंट माइंड कि डॉक्टर्स आजकल तो फनी माइंडेड हो गए हैं, वो एंड में सिजेरियन कर देते हैं, कहते हैं बच्चे का सर फंस गया, पॉटी कर, आई मीन कोई भी रीजन देके XYZ,
तो इसमें मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हम टारगेट करते हैं तो कैसे करें, और मतलब इन्हीं चीजों में थोड़ा सा आपका व्यू क्या है? देखो, इसमें अब मेरा एक बहुत सिंपल सा लाइन है जो कि मैंने डॉक्टर रूपम अरोड़ा से सीखी है ना, मुझे बहुत ही पसंद है ये लाइन, मेरी फेवरेट लाइन है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा या फेल, तो व्हाट विल यू आंसर? टिल द टाइम यू डोंट टेक द एग्जाम यू विल नॉट नो वेदर यू विल पास और यू विल फेल, राइट? तो सेम वे डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, वो तब तक हम नहीं कह सकते जब तक आपको लेबर पेन स्टार्ट ना हो, ठीक है? तो लेबर पेन इज द अल्टीमेट ट्रायल ऑफ योर डिलीवरी की नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। अंडरस्टूड? अब सो दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा हाँ, अगर दूसरा हम प्लान करना चाहते हैं, हाँ, राइट, किन बातों का ध्यान में रखें? तो दूसरा पॉइंट ये है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, कि नंबर ऑफ फीटसेस क्या है, आपका पेल्विस कितना है, बेबी का वेट कैसा है ना, कोई अनवारंटेड ये हाई रिस्क फैक्टर्स लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब तो नहीं। प्लेसेंटा होती है जो इसको हिंदी में अवल नाल बोलते हैं, तो अवल नाल लो लाइंग तो नहीं है ना, लो प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर बच्चा आड़ा या तिरछा हो या उल्टा हो तो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो ये सारी कंडीशंस अगर कुछ नहीं है ना, तो वी कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ आपके कुछ करने से ही नॉर्मल डिलीवरी होगी, है ना। नॉर्मल यस। डिलीवरी में यू हैव टू वेट कि जब पेन होगा तो यूट्रस का माउथ जिसको हम सर्विक्स कहते हैं वो खुलेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप बेबी नीचे आएगा और फिर डिलीवरी होगी। तो सबसे पहली चीज तो है कि आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। जो ये मनी वाला बायस है कि नॉर्मल में कम पैसे होते हैं, सिजेरियन में ज्यादा होते हैं इसलिए डॉक्टर सिजेरियन कर देते हैं, उस बायस को हटाने के लिए आजकल सारे हॉस्पिटल्स ने क्या किया है कि दे हैव फिक्स द चार्जेस फॉर नॉर्मल एंड सिजेरियन, इट इज द सेम इन ऑलमोस्ट ऑल मल्टीज। जो भी ये सारे ब्रांड वाले हॉस्पिटल हैं, क्लाउड नाइन, मैक्स, फोर्टिस, तो दे चार्ज द सेम फॉर नॉर्मल एंड सिजेरियन। या आई हैव वाउच्ड इट। हमारे केस में भी जब हम पता करने गए थे तो वी वर सरप्राइज टू नो कि अच्छा दोनों के सेम है। तो शायद हम्म, हमें भी उससे ये लगा कि शायद मैसेज यही है कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि ऐसा अब कोई इंटेंशन जबरदस्ती नहीं। आपका सिजेरियन करे। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम्स सब कुछ चेंज होता है ना। अब पहले के जमाने में बाथरूम में वो नहीं होता था, नल का नहीं होता था, वो पानी भर के बाथरूम में रखते थे, राइट। तो अब टाइम चेंज हुआ तो लोगों के घर में टैप्स लगने लगे। तो सेम वे पहले के जमाने में अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो सिजेरियन को पता ही नहीं था कुछ, है ना। नॉर्मल डिलीवरी अपने आप हो जाती है। नॉर्मली डिलीवरी कोई ना भी हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाले हो तो लोगों के सुने ना कि घर पे भी डिलीवरी हो जाती है, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो वो नेचर ने ही ऐसा बनाया है, जानवरों की डिलीवरी नॉर्मल ही होती है ना, नेचर ने ही ऐसा हम्म। बनाया है। बट क्या हमें नहीं पता कि पहले के जमाने में लोग 10 बच्चे 8 बच्चे पैदा करते थे। उसमें से सुना होगा, अपनी दादी से आप पूछो, कोई बहुत बड़े लोग फैमिली में उनसे पूछो, वो बताएंगे कि हमारे 4-5 डिलीवरी थी, इसमें से 2-3 बच्चे खत्म हो गए थे, 2-3 ठीक रहे। तो उस टाइम पे ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं थी। अब हम्म। आज के जमाने में क्या, कैन यू इमेजिन एनीबडी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल हैविंग 8 चिल्ड्रन, हैविंग प्रेगनेंसी 8 टाइम्स? नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। या तो इसलिए अब जमाने के साथ सब कुछ चेंज हो गया है, तो अब सिजेरियन थोड़े रेट्स बढ़ गए हैं क्योंकि सिजेरियन की टेक्निक अब ज्यादा रिफाइंड हो गई है। पहले जो क्वीन लंदन की जो क्वीन थी, उसके टाइम पे एक बार जब फर्स्ट सिजेरियन हुआ उनका, तो जो यूट्रस को वापस क्लोज करने के लिए स्टील के वायर्स यूज किए गए, क्योंकि तब कोई सूचर ही नहीं था, मटेरियल ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो उस टाइम इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते थे, लोग मर जाते थे और इन्फेक्शन हो जाता था क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे। तो अब ऐसा वाला तो कुछ है नहीं, तो अब सिजेरियन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली सेफ। कई बार मुझे पेशेंट्स पे मतलब आई वांट टू रेज दिस अवेयरनेस ऑल्सो कि अगर कई बार करना पड़ भी जाए सिजेरियन तो इट्स नॉट अ बिग वेरी बिग डील, है ना। एट द एंड ऑफ द डिलीवरी वी से कि द मदर एंड द बेबी शुड बी सेफ, है ना। उससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मदर भी सेफ होनी चाहिए और बेबी भी सेफ होना चाहिए। तो अगर कई बार करना पड़ भी जाए, कई बार पेशेंट अड़ जाते हैं लास्ट मिनट पे, अगर बेबी की हार्ट बीट कम ड्रॉप होने लगे, तो आप क्या करोगे एज अ डॉक्टर? यू ऑल्सो वांट टू गिव अ हेल्दी बेबी टू द पेशेंट, एंड फिर आप बोलोगे कि सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी में तो टाइम लगेगा, अभी रास्ता ही नहीं खुला है, देयर इज नो वे यू कैन लाइक पुल द बेबी फ्रॉम डाउन। तो यू सजेस्ट कि आप सिजेरियन कर लो। उस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो एकदम बड़े सैड हो जाते हैं कि हाय, मेरा तो सब कुछ ठीक था अभी तक, और अब क्यों ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है, क्यों सिजेरियन करना पड़ रहा है। तो लाइक
आई फील कि यू शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना, कि कुछ चाहे कुछ भी करना पड़े, इट शुड बी लाइक यू शुड बी ओपन टू बोथ द थिंग्स. एंड सेकेंडली, यू शुड हैव ट्रस्ट इन योर डॉक्टर. ना, जब आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी, आउटकम भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा. तो यू शुड हैव एब्सोल्यूट फेथ कि जो आपका डॉक्टर करेगा वो बिल्कुल अच्छा ही करेगा आपके लिए. ओके, सो एक एंड क्वेश्चन आया है, वैसे तो वो ये सॉरी यू वर सेइंग आई समथिंग. वाज सेइंग कि एंड लास्ट चीज ये है कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन बहुत ज्यादा होता है ना. तो आजकल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. एपिड्यूरल में आपके पीठ में एक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे थोड़े से लोअर लिम्स के सेंसेशन चले जाते हैं और पेन की कोई फीलिंग उतनी नहीं होती है. तो बहुत सारी गर्ल्स जिनकी पेन टॉलरेंस पुअर है, दे ऑप्ट फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. तो एक ये भी ऑप्शन है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए और ज्यादा पेन भी ना हो. और दूसरा कि आपको खुद फिजिकली फिट रहना है. तो प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं कि बस बिस्तर पकड़ लिया, प्रेगनेंसी है तो आराम ही कर रहे हैं. बी एज फिजिकली एक्टिव एज यू कैन बी. तो वॉकिंग करो रोज, थोड़ा प्रीनेटल योगा होते हैं, लमाज क्लासेस होती हैं, तो वो सब आप कर सकते हो टू कीप योर मसल्स एक्टिव, है ना. हाँ, आई एंड थिंक यही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. आपने लाइक हाउ कैन वी इंश्योर फ्रॉम बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी फॉर नॉर्मल डिलीवरी, साक्षी इज आस्किंग. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई सेड कि यू कैन नॉट इंश्योर अ नॉर्मल डिलीवरी, बट यू कैन डू जो भी मैंने बताया कि फिजिकली फिट रहो, अपना एक्सरसाइजेस करो. यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ्स हम मना करते हैं एक्सरसाइजेस ये सब, बट उसके बाद अगर आपकी कोई वो हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो यू कैन एक्सरसाइज. ओके डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर. लाइक यहाँ पर ट्विन्स के केसेस होते हैं ना, जैसे मेरा ट्विन का केस था, तो मेरे को जैसे नॉर्मली जब हम सुना था कि फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपको कंप्लीट रेस्ट करना है बिकॉज बेबी डेवलप हो रहा होता है. बट लोग कहते थे कि ट्विन्स के केस में ना, नहीं नहीं, आपको 5 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक तो सिंगल चाइल्ड में होता है, इसमें आपको और एक्स्ट्रा थोड़ा केयर करना होगा, 5 महीने तक आपको नहीं निकलना चाहिए. तो क्या मतलब इस तरीके का ये कितना सही है कि वही चीज होती है ट्विन्स के केस में भी 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी है, या फिर यू हैव टू बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी फॉर मोर मंथ्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्विन्स में एक्स्ट्रा मंथ्स के लिए कुछ प्रिकॉशन लेना है. बेसिकली ट्विन्स में वी आर स्कैर्ड अबाउट प्री टर्म लेबर, है ना. मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि 37 वीक्स के बाद अगर लेबर पेन स्टार्ट हो तो इट इज नॉर्मल, है ना, उसको टर्म बेबीज कहते हैं. 37 वीक्स से पहले अगर हो जाए तो प्री टर्म होता है. प्री टर्म बेबीज प्री मेच्योर होते हैं, उनको नर्सरी में रखना पड़ सकता है. तो ट्विन प्रेगनेंसी में हम सबसे ज्यादा इसी चीज से घबराते हैं कि प्री टर्म लेबर पेन्स ना हो. तो इसलिए थोड़ा सा हम मोबिलिटी पेशेंट की, कई बार हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करना, क्योंकि प्रेशर ग्रेविटी के कारण नीचे ज्यादा होता है. बट आई फील कि अपना नॉर्मल रूटीन तो सबको कैरी आउट करना ही चाहिए. 3 मंथ से बियॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है कि ट्विंस में 5 मंथ्स तक बेड रेस्ट करना है. ओके, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास. आई डू रनिंग बट आई फील पेन इन फ्रंट बोन ऑफ लेग इन लोअर साइड. प्लीज सजेस्ट समथिंग. पीपल सेज कि खुद ही ठीक हो जाएगा, बट अराउंड 1 year हो गया एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट. ओके, तो सी, अगर आपको पेन है गरिमा, मे आई नो योर एज? गरिमा, if you can quickly drop your age as well. तो आई जस्ट वांटेड टू से कि एक तो अगर पेन पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कोई जो बोन इशू हो, है ना. तो एक बार ऑर्थोपेडिशियन को जरूर दिखाना चाहिए. दूसरा, कई बार कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज अलाउड नहीं होती है. जैसे आई हैव आल्सो सम नी इश्यूज, तो मुझे रनिंग अलाउड नहीं है, मुझे जंपिंग अलाउड नहीं है. तो यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव कि अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है विच एन ऑर्थोपेडिशियन हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ जॉइंट विल बी एबल टू कमेंट अपॉन. एंड ऑल्सो अगर मतलब यू मस्ट चेक योर कैल्शियम लेवल्स एंड विटामिन डी लेवल्स. तो अगर वो कम है तो टेक सप्लीमेंटेशन, है ना. यूजुअली हमारी डाइट बहुत फॉल्टी होती है, बहुत सारी लड़कियां दूध ही नहीं पीती हैं, एंड मिल्क इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. तो अगर आपका कैल्शियम कम है तो एक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करो. विटामिन डी भी अगर हम कराएं तो 90% लोगों का विटामिन डी लो आता है बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर नहीं है आपकी जनरेशन में इतना ज्यादा. तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑल्सो आई मेड अ रूल दैट ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आई गिव विटामिन डी टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स. तो ये मेरा नॉर्मल है इसलिए.
जिनका कम है उनको फर्स्ट 8 weeks take every week vitamin D, and then once it is normal then you should take every month. Okay. थैंक यू। डॉक्टर नेहा, एक और क्वेश्चन आया है कि हम्म कई बार प्रेगनेंसी में फॉल्स पेन होते हैं, उसमें पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखो, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है ना, वैसे तो लेबर पेन के लिए हम बोलते हैं कि लेबर पेन के कुछ साइंस क्या क्या हो सकते हैं, कि अगर आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है, पेन कमर से आगे की तरफ जा रहा है, एंड विथ टाइम इट इज इंक्रीजिंग, सेम इंटेंसिटी का नहीं होता है। लेबर पेन कभी भी कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, जैसे मरोड़ आते हैं पेट में तो वो आते हैं कुछ सेकंड्स के लिए फिर चले जाते हैं, तो लेबर पेन भी ऐसा ही होता है कि आता है कुछ सेकंड्स के लिए फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर में आता है फिर चला जाता है, एंड विथ टाइम इट इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी, मतलब और जल्दी जल्दी आने लगेगा और ज्यादा टाइम के लिए आने लगेगा। एंड साथ में उसके साथ कई बार लीकिंग भी हो सकता है, जैसे वाटर बैग बर्स्ट हो गया तो बिल्कुल पानी की तरह फ्लूइड आने लगेगा। तो अगर ये सब चीजें हैं तब तो लेबर पेन है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो फॉल्स लेबर पेन है। बट फिर भी अगर कुछ आपको डाउट है ना, कुछ भी थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ट्रू है फॉल्स है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका डॉक्टर के पास चले जाओ, एक बार डॉक्टर देख लेगा, सब रीअश्योर कर देगा, आपको वापस भेज देगा, तो नॉट अ बिग डील। इन केस ऑफ एनी डाउट यू शुड ऑलवेज विजिट द डॉक्टर, क्योंकि ओके फोन पे तो उनको भी नहीं पता लगेगा कि आपको किस तरह का पेन आ रहा है ना, तो उसके लिए एक बार देखने की जरूरत होती है। ओके। सो आई होप रजनी जी आपको आंसर मिल गया। डॉक्टर नेहा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जैसे सब कुछ ठीक रहा और हमने कंसीव हो गया, घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करा, वो पॉजिटिव आया, तो अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? लाइक कंसीव हो गया, टेस्ट करा, घर में पॉजिटिव आया, तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? तो नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली गोइंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो ओके। वी से कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो उस मोमेंट पे यू कैन विजिट द डॉक्टर। तो डॉक्टर यूजुअली कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं और कुछ एक अल्ट्रासाउंड करते हैं हम कंफर्म करने के लिए, टू सी द बेबीज हार्ट बीट, है ना। तो हार्ट बीट यूजुअली 7 weeks के अराउंड आता है, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड डू द अल्ट्रासाउंड। ओके। So, and also, one more message I want to give, कि usually patients come with a mindset that ultrasound is harmful for the baby. So I want to tell you that ultrasound is just sound waves, है ना? So it is not at all harmful for the baby. It is very safe. And usually in private practice, I would say कि like 4 to 5 times डॉक्टर सारे अल्ट्रासाउंड कराते ही हैं, which those are the mandatory scan. And इसके अलावा ऑप्शनल 1 or 2 एक्स्ट्रा कैन बी डन, अगर डॉक्टर को कभी लगे कि बच्चा उनको देखने में छोटा लग रहा है क्लिनिकली, या कोई किसी को ब्लीडिंग हो गई या कोई चोट लग गई, तो 1-2 एक्स्ट्रा स्कैन भी करा सकते हैं। तो बी रेस्ट अश्योर्ड दैट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर द बेबी। यह आपने सही कहा डॉक्टर। एक बार मैं एक लाइक छोटी सिटी में गई, वहां पे मैं प्रेग्नेंट, मतलब मैं किसी से डिस्कशन कर रही थी, तो उन्होंने मुझे यही बोला, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू हियर दिस कि निशा, हमारे यहाँ तो ना, हमारे घर में ऐसा होता है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो लाइक हम तो सिर्फ 2 बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, जैसे आपका तो अल्ट्रासाउंड कितनी बार हो गया पूछ रहे हैं कि लाइक मैंने कहा अभी इतनी बार हो गया, ऑलमोस्ट हर महीने ही होता है। लाइक ट्विन का हाँ, केस था ट्विन तो में तो होता ही है। हाँ, तो मैंने कहा ऑलमोस्ट हर मंथ होता है, वो डॉक्टर कहते हैं डेवलपमेंट बेबी। तो शी वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब ठीक नहीं होता अल्ट्रासाउंड, हमारे यहाँ तो बस हम पूरी प्रेगनेंसी में 2-3 बार ही कराते हैं, जितना कम हो उतना अच्छा है। हम्म तो तो ऐसा कुछ इवन नहीं है। आई हियर फ्रॉम द पेशेंट्स ना, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू एड्रेस दिस थिंग। या ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डॉक्टर, जैसे मैं आई एम 36, और मैं अपने ही एज के जब फ्रेंड्स में डिस्कस करती हूँ इस टॉपिक पे कभी भी, तो जनरली ना ये बहुत देखा गया है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स के ही बहुत केसेस हैं कि एबॉर्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्या बोलते हैं, मिसकैरेजेस जो हैं, सॉरी, बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% केसेस में मैंने देखा है एक मिसकैरेज केस है, 2 केस हो गए। तो क्या ये चीज, मतलब क्या ये मिसकैरेज होना नॉर्मल है, या अगेन मतलब इज इट समथिंग अलार्मिंग अगर किसी के 2 मिसकैरेज हो गए या 1 मिसकैरेज हो गया, तो कहीं मतलब कुछ चिंता का वो है ये विषय, या ये क्योंकि कई बार हमने देखा है डॉक्टर कहते हैं कि लाइक आजकल इट्स मतलब एब्सोल्युटली फाइन, कि मतलब 10 में से हर 2 जने को मिसकैरेज होता है, जनरली इस तरीके के रिस्पॉन्सेज है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसके बारे में। सो अगर एक हम डेटा की बात करें निशा, तो वर्ल्ड ओवर approximately 10 to 12% of pregnancies
they result in an abortion or miscarriage. Okay. It is absolutely fine. Usually 95%, 90 to 95% of the cases में next pregnancy में problem नहीं आती, ठीक है? Okay. But अगर 2 या 2 से ज्यादा miscarriage हो गया किसी patient का लगातार, तो that is called as recurrent miscarriage. So this can be a little problematic condition. तो ऐसे वाले conditions में definitely next pregnancy plan करने से पहले कुछ काफी सारे tests होते हैं, वो कराने चाहिए. बट 1 या 2 मिसकैरेज में ऐसे यूजुअली घबराने वाली बात नहीं होती है. अगर रीजंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन रीजन होता है जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी, है ना. जब एक प्रेगनेंसी होती है तो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से होती है ना. तो उस टाइम पे कुछ कई बार क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होता है, तो कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है. तो नेचर ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है कि कोई एब्नॉर्मल चीज को वो आगे ग्रो नहीं करने देती, है ना. तो अपने आप ही वो मिसकैरेज हो जाता है. तो एक तरह से ऐसा समझो कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि कोई भी एब्नॉर्मल चीज यू डोंट वांट, तो नेचर इटसेल्फ इज एक्सपेलिंग दैट एब्नॉर्मल थिंग. Okay. तो अगर 1 या 2 टाइम्स हुआ तो इट्स नॉट अ रीजन फॉर कंसर्न, बट या डेफिनेटली यू गेट वेरी इमोशनल. तो वो इमोशनली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, बट Yeah. जनरली फिर नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती है. Okay. अगर So- मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरी 2 daughters हैं, but my first pregnancy resulted in a miscarriage at 9.5 weeks, and I also had a DNC. Okay. ठीक है. तो मतलब yes, so my एग्जांपल next दे रहे कि question डॉक्टर का भी हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है. यस यस नहीं सही बात है, बिकॉज वो तो लाइक ह्यूमन बीइंग किसी के भी साथ हो सकता है ना. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है. अभी आपने बात करी, मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके थे. मेरे बेबीज जो है वो 3rd अटेम्प्ट में थे. सो लाइक फर्स्ट सिनेरियो में डॉक्टर एडवाइज मी डीएनसी, और सेकंड में उन्होंने वो कुछ दवाई देते हैं. तो यस मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेती हूँ कि आप क्या एडवाइस करती हैं कि मतलब अगर मिसकैरेज है तो वी शुड गो फॉर डीएनसी और जो वो दवाइयां देके करते हैं. तो देखो वो डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है. तो अगर पीरियड जिस दिन आया था लास्ट पीरियड से अगर 7 to 9 वीक्स ही हुए, विद इन 63 डेज मिसकैरेज हो गया है ना, 49 to 63 डेज में, तो हम पिल्स दे सकते हैं, है ना. तो पिल्स में हम कहते हैं कि 95 to 97% सक्सेस रेट होता है, 3 to 5% फेलियर रेट होता है. तो पिल्स के बाद वी ऑलवेज एडवाइज द पेशेंट टू गेट अ रिपीट अल्ट्रासाउंड डन आफ्टर 2 weeks टू चेक फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द प्रोसीजर. तो अगर पिल्स फेल हो जाए तब डीएनसी करनी पड़ सकती है. अगर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन ज्यादा की है तब डीएनसी करनी पड़ सकती है. या फिर किसी को जैसे अबॉर्शन की दवाई देते हैं, समटाइम्स पेशेंट लैंड अप इन मैसिव ब्लीडिंग, है ना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे भी फिर इमरजेंसी में डीएनसी किसी किसी में करना पड़ जाता है. तो डीएनसी करने से एक बार ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है और फिर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाता है. ओके. एंड एक और कंडीशन है, कुछ पेशेंट्स की पेन टॉलरेंस बहुत पुअर होती है ना, जैसे आपने बोला ना कि मैं पीरियड के पेन से भी बेहोश हो जाती थी. तो अगर कोई पेशेंट इतना सेंसिटिव है कि वो पेन में बेहोश हो जाए तो फिर उसको भी डीएनसी करा लेनी चाहिए अपनी. ओके ठीक है. लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर, क्योंकि हमारा टाइम अप हो रहा है. कई बार हमने देखा है कि जैसे वी लैंडेड अप इन अनवांटेड प्रेगनेंसी. सो मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप उस पर भी टच अपॉन करें कि व्हाट्स योर सजेशन, हाउ वी शुड डील विद इट. सो निशा देखो, प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन. आई वुड से यू शुड गेट प्रेग्नेंट ओनली व्हेन यू वांट, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस नाउअडेज कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो नोबडी शुड लैंड अप इन एन अनवांटेड प्रेगनेंसी. ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि अगर हो भी गई तो देर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, है ना, कि आप डरो कि डॉक्टर मुझे डांटेगा या लोग क्या कहेंगे. कभी भी डरना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी हो सकता है ना. तो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी गई तो यू शुड ऑलवेज विजिट द डॉक्टर बिफोर टेकिंग द अबॉर्शन पिल्स. अबॉर्शन पिल्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, है ना, बाय रूल. पर हमारे देश में रूल के हिसाब से तो कुछ चलता नहीं है, ओवर द काउंटर भी पिल्स मिल जाती हैं, बट यू शुड नेवर टेक, है ना. ऑलवेज आई वुड से कि हमेशा कंफर्म करना चाहिए पहले अल्ट्रासाउंड से कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है कि नहीं, क्योंकि 7 in 1000 प्रेगनेंसीज कैन बी एक्टोपिक. एक्टोपिक मतलब कि यूट्रस के अलावा कहीं और हो गई प्रेगनेंसी, ट्यूब में हो गई. ऐसे कंडीशन में अगर आप पिल खा लो तो ट्यूब फट सकती है, यू कैन लैंड अप इन एन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी. तो इट्स ऑलवेज बेटर to do an ultrasound before taking abortion pills and then after the abortion pills as well, 2 weeks to check for the completeness of the procedure.
एंड प्रेगनेंसी ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? रफली कॉन्डम्स हैं, पिल्स हैं, कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन डिवाइस बोलते हैं वो हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इम्प्लेनॉन व्हिच इज अ रॉड लाइक डिवाइस व्हिच इज इंसर्टेड इन द फोर आर्म। ठीक है, फिर इंजेक्शंस होते हैं जो कि फीडिंग मदर्स के लिए अच्छे होते हैं, 3 मंथ्स में वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करो तो वो आपको सब कंसल्ट करोगे तो सब बताएंगे कि क्या किस किस चीज में क्या कौन कौन सा आपके लिए सूटेबल है ना। कि सर्टेन हेल्थ कंडीशंस लाइक जो पिल्स होती हैं वो स्मोकर्स में नहीं दे सकते, हाइपरटेंसिव में नहीं दे सकते, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है उनमें नहीं दे सकते। तो इसी तरह से हर ऑप्शन का कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है, तो यू शुड ऑलवेज डिस्कस विद द डॉक्टर एंड देन यूज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल कि आईपिल है ना, सब लोगों को पता है कि आईपिल काफी रैम्पेंटली यूज करते हैं लोग। तो आईपिल इज कॉल्ड एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, है ना। तो आईपिल तब यूज करना होता है जब अगर आप का कॉन्डम रप्चर हो गया या आपने अपनी कोई पिल मिस कर दी, है ना, कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, तो आईपिल तब यूज करना चाहिए। इट इज फॉर एब्सोल्यूट इमरजेंसी, इट इज नॉट अ मेथड फॉर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन कि हर बार इंटरकोर्स के बाद आप आईपिल खा रहे हो। इट इज नॉट टू बी यूज लाइक दैट। ओके डॉक्टर नेहा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, जो स्पर्मिसिडल जेल का यूज किया जाता है वो सही होता है? वो देखो हमेशा ना वो किसी के साथ यूज करो तब ज्यादा फायदा है, अकेले उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी तो नहीं है। यू कैन स्टिल लैंड अप इन अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अगर हम एफिकेसी वाइज बोले तो कॉन्डम का 30% फेलियर रेट होता है ना। जो पिल्स होती है वो 99.9% इफेक्टिव होती है, मतलब 0.1% ही फेलियर होता है। तो स्पर्मिसाइडल जेली ठीक होता है बट अकेले बहुत काम का नहीं है, कॉन्डम्स के साथ उसकी एफिकेसी डबल हो जाती है ना। Okay, so I request our participants, if you have more questions, please drop in your questions. And Dr. Neha, thank you so much. आपने इतने पेशेंट इतने पेशेंट से इतने ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चन आए, मैंने कल पूरा दिन भर बैठ के सोचा क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और अपने फ्रेंड से पूछा, तो आपने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन का आंसर दिया. सो थैंक यू. I thank you from my bottom of heart. I thank you uh, from all participants side as well. And yes, I request all of you, if you have any questions, so please do ask. आज तो बिना कंसल्टेंसी फी के डॉक्टर नेहा हमारे पास है. So डॉक्टर नेहा ने ही मेरा डॉक्टर नेहा ने अपनी सीनियर के साथ ही लाइक मेरा सिजेरियन करा था लास्ट ईयर. एंड एक बात शेयर करूंगी, जब डॉक्टर नेहा नेक्स्ट डे विजिट करने आए रूम में, तो मेरी मम्मा थी वहां पे अटेंडेंट. तो डॉक्टर नेहा मम्मा से बोलती हैं कि नेक्स्ट डे ना स्टिचेस चेक करते हैं कि स्टिचेस कैसे हैं. तो डॉक्टर नेहा बोलती हैं कि देखो स्टिचेस कितने सुंदर लगे हैं, और मैं कितने सुंदर स्टिचेस हैं. सो मैं एज अ पेशेंट आई वाज वेरी शॉक टू हियर कि ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, लाइक स्टिचेस भी सुंदर होते हैं क्या? आई मीन स्टिचेस तो स्टिचेस होते हैं. बट उस टाइम बट ये मेरे माइंड में बहुत बार बार घूम रहा था, स्टिचेस बड़े सुंदर लगे हैं. तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मेरी यंगर सिस्टर जो है उसने 3 महीने पहले मुझसे बेबी डिलीवर करा था. तो मैंने उसको बोला कि यार आर यू एबल टू चेक योर स्टिचेस, क्या तू अपने स्टिचेस देख पाती है? तो उसने कहा नहीं. तो मैंने कहा मैंने अपने स्टिचेस देखना चाहती हूँ. मेरी डॉक्टर ने बोला बड़े सुंदर स्टिचेस लगे हैं. तो कुछ टाइम बाद लाइक अब जब हमारा फैट रिड्यूस हो गया होता है, तो अब मैं जब अपने स्टिचेस देखती हूँ तो मैं रियली में डॉक्टर नेहा को थैंक्स करती हूँ. मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, उन्होंने सही कहा था, स्टिचेस बहुत सुंदर लगे हैं. तो अब मुझे समझ में आता है स्टिचेस सुंदर का मतलब वो मतलब पता नहीं चलते बिल्कुल पता भी. नहीं चलता एक तो एग्जैक्टली। मतलब इस बिल्कुल नीचे होते हैं, और कि मतलब आप कुछ ऐसा पता नहीं लगेगा, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते. सो मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ डॉक्टर नेहा, रियली में आपने बहुत सुंदर स्टिचेस दिए थे. मोस्ट वेलकम निशा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। एंड वो स्टिचेस का होता है जैसे पहले के टाइम में, थोड़ा 5-6 साल पहले की बात करें ना, तो जो थ्रेड होता है जिससे हम स्टिच लगाते हैं, तो अब जो लगाते हैं उसको बोलते हैं सब क्यूटिकल, उसमें कोई नॉट नहीं आती जैसे होता है ना पहले। आप सुनते हो कि टांके कटवाने जाना है, तो अब ये कोई टांके काटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है आजकल, गवर्नमेंट में अभी भी लगाते हैं वैसे वाले। तो ये वाले टांके जो होते हैं वो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं।
तो उसमें हम कुछ काटते वाटते नहीं है, तो Plus अपने आप पहले दाग आगे लग जाता है, तो उसमें बहुत अच्छी स्कार की जो लुक है वो बहुत अच्छी, बहुत फाइन लाइन आता है, बहुत बारीकी से देखो तब नजर आता है। और आई थिंक और जैसे जो मैं पर्सन टू पर्सन बॉर्डर, हीलिंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे भी 2 सिजेरियन हुए हैं, तो मेरा जो खुद का स्टिच लाइन है वो थोड़ा ऐसा मोटा मोटा सा फील होता है, मुझे अपना नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए जब पेशेंट का बहुत सुंदर आता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि कितना अच्छा स्कार आया है। यहाँ तो मुझे अभी तक वो लाइन याद आती है कि मतलब थोड़ा सा ना हम उस टाइम अलग से उसमें होते हैं फेज में, यू नो, कि सिजेरियन हुआ है, अभी पता नहीं होता कि लाइक आगे क्या होना है, कुछ भी नहीं पता होता। तो आपने आके जब ये लाइन बोली तो शायद माइंड में कुछ पॉजिटिव आता है कि यार स्टिचेस बड़े सुंदर लगे हैं। तो लेकिन कुछ महीनों तक तो हम देख नहीं पाते ना मिरर में कि क्या ये स्टिचेस दिखते ही नहीं। तो अब मुझे समझ में आता है कि वो स्टिचेस सुंदर का क्या मतलब होता है। सो चलिए, आई थिंक एक बार मैं चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ इफ वी हैव नो, यू नो, all participants are thanking you, Dr. Neha, for your insightful session. आप सभी पार्टिसिपेंट से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा, जो कि आई एम श्योर आपको लगा है, काफी इंफॉर्मेटिव रहा है, ये सेशन जो है हम इसकी रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितना मैक्सिमम हो सकता है इसको शेयर करिए। देखिए अक्सर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम विमेन जो है, मतलब वी वियर मेनी हैट्स, यू नो, हम बहुत जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमें अपना वैसे ही ऑफिस और घर मैनेज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। और जब भी हम नॉर्मली क्या होता है कि वी आर केयरिंग इन नेचर, बट हम दूसरों के लिए थोड़ा सा ज्यादा केयर करती हैं और ये सोचते हैं कि शायद जो बचा कुचा टाइम होगा उसमें वो अपने लिए करेंगे, और वो बचा हुआ रेसिडुअल टाइम कभी नहीं आता। तो शायद हम अपनी केयर, जो मुझे लगता है, हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं होता। जैसे अभी अगर डॉक्टर नेहा ने हमें जो जो बातें बताई, अगर हमने उसमें से 2-3 चीजें भी हमारे माइंड में रहेंगी तो हम उनको ध्यान में रखेंगे और वो चीज का ध्यान देंगे कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो आई एम होपफुल कि इस सेशन से जो है आप इन बातों का ध्यान में रखेंगे और आप अपने यही चीज आप अपने आगे बच्चों को पास ऑन करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो आपने आज सुनी, आप इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को क्योंकि इसमें हमने आई थिंक सारे जो जनरल कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, पीरियड से रिलेटेड, कंसीवमेंट से रिलेटेड और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, आई थिंक सारे, मतलब मैंने ट्राई करा कि हम सारे कॉमन क्वेश्चंस को कवर करें। सो विद दिस एंड ये हमारा आज का एपिसोड 2 था हमारी सीरीज का। मैंने आपको बताया हमारा एपिसोड 1 था ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विमेन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, प्लस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पैसा कमाना। बट हमने डिस्कस करा उस सेशन में डिटेल में कि पैसा कमाना इज नॉट फाइनेंशियली फ्री, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ और होता है। पैसा कमाना और पैसा संभालना और पैसे से पैसा बनाना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो वो हमने डिटेल में कवर करा था। आज हमने डिटेल में अपने हेल्थ के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट सेशन में हम एपिसोड 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ टू हील योर माइंड, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। So stay tuned. I'll be sharing that invite with you all as well. So with this, I would like to thank you, all of you, for being with us. Thank you, Dr. Neha. Thank you, Nisha. Yeah. So Thank I'm you. ending up the session. Thank you, everyone.